رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توا وتمتعه فيها طويلا۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين باری الخلائق الأجمعین فاطر السماوات والأرضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق انا نحن نحیی الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات۔ آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی ستائش کے ساتھ، جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کی ذات احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جو لم یلد ولم یولد بھی ہے، وہ پروردگار جو قادر قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا، وہ پروردگار کے جو ہمارا اور آپ کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ مگر آغاز قرآن میں پروردگار نے جب اپنا تعارف کروایا تو کن کے ذریعے، کن صفات کا تذکرہ کیا، کن کوالٹیز کا ذکر کیا، اپنی کون سی اوصاف کو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ نے جب خود کو پہچنوایا تو کس طرح قرآن کی پہلی آیت جو اعلان کر رہی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو سب سے پہلی اپنی صفت کا تذکرہ کیا، اللہ نے جس کوالٹی کا تذکرہ کیا، اللہ نے جو اپنی کوالٹی دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنی رحمانیت کا تذکرہ کیا، اپنی رحیمیت کا تذکرہ کیا۔ گویا اس نے اپنے بندوں کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو، اگر تمہیں مجھے پہچاننا ہے، تم اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تم پہ کرم کرنے
والا، میں تم پہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں عزیزان گرامی، اس کے فوراً بعد اللہ نے جو سورہ حمد نازل کی، وہ سورہ فاتحہ کہ جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اگر قرآن کھولتی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قرآن کھولا جاتا ہے، داہنے ہاتھ میں جو سب سے پہلا سورہ ہمیں ملتا ہے وہ سورہ حمد ملتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی سورہ حمد کے متعلق جب تذکرہ کروں گی تو اس پر میں بعد میں ذکر کروں گی، اس کے بارے میں بعد میں تذکرہ کروں گی کہ اسے فاتحہ کیوں کیا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج صرف ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے کہ اللہ نے جب سورہ حمد کا آغاز کیا تو اس نے اپنی دوسری کوالٹی جو اعلان کی وہ کیا ہے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے جو اپنی دوسری کوالٹی دنیا والوں کے سامنے رکھی، وہ اپنی صفت ربوبیت کو پہچنوایا۔ یہ کہہ کر پہچنوایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا رب کے معنی پرورش کرنے والا، رب کے معنی پالنے والا۔ اللہ نے اگر خود کو پہچنوایا ہے تو کیا کہہ کر پہچنوایا؟ کہ میں اپنے بندوں کا پالنے والا ہوں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تاکہ بندے یہ سمجھ لے کہ پالنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے جب بچوں کو اس دنیا میں بھیجا، ایک ماں ضرور دی تاکہ پہچانا جا سکے، تاکہ یہ پہچانا جا سکے کہ یہ ماں جو ہوتی ہے یہ پالنے والی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جو ہو جب اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، جب اپنے بچوں کو پالتی ہے تو وہ کس طرح پالتی ہے؟ وہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ممتا کے ساتھ پالتی ہے۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ جو ہے اپنے بندوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اپنے خالق کی اپنے خالق کی محبت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس ماں کو دیکھو کہ جس کے اندر میں نے صرف ممتا کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ رکھا ہے۔ اب تم اس کی محبت کو دیکھ کر میرے رحم کا اندازہ لگاؤ، اس کی ممتا کو دیکھ کر میرے کرم کو پہچانو کہ یہ پروردگار جو ہے وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور عزیزو، یہ اس محبت کا تقاضا تھا، یہ محبت خدا بندی کا تقاضا تھا کہ اللہ نے ہمیں خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اس نے دو ذرائع بھی فراہم کر دیے۔ ایک تو اس نے انبیاؤں کو بھیجا، مرسلین بھیجے، اس نے رسولوں کو بھیجا تاکہ زندگی کے ہر لمحے میں انسان جو ہے ہدایت پاتا رہے۔ اور جب مرسلین کے سلسلے کا خاتمہ کیا تو اس نے ائمہ کے سلسلے کو باقی رکھا تاکہ ایک لمحے کے لیے یہ دنیا جو ہے ہادی سے خالی نہ رہ سکے۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے اس نے جو ہمارے درمیان باقی رکھا، وہ اس نے اپنی لازوال عظیم کتاب کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، جو آج ہمارے پاس ہماری ہدایت کا ذریعہ بن کر موجود ہے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جو لا ریب بھی ہے، جو بے عیب بھی ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو لاسانی بھی ہے، لافانی بھی ہے۔ یہ قرآن وہ بھی ہے جو ہمارے لیے دعا بھی ہے، ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، تو کوشش یہ کروں گی، چونکہ ایصال کی مجلس ہے اور مجھے مختصر سے گفتگو کرنا ہے، تو کوشش یہ کروں گی کہ مختصر پیرائے میں سمندر کو کوزے میں سمیٹتی چلوں۔ اور جس آیت پر مجھے ذکر کرنا ہے وہ آیت آپ کو معلوم ہے، سورہ یاسین کی اہم ترین آیت ہے، بہت ہی مانی جانی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد بھی زندگی عطا کریں گے۔ تذکرہ مجھے اس آیت کے حوالے سے کرنا ہے، لیکن پہلے چونکہ قرآن کی آیت ہے تو تھوڑی سی گفتگو قرآن کے حوالے سے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ذکر، تھوڑا سا ڈسکشن سورہ یاسین کے حوالے سے، کیونکہ یہ سورہ یاسین کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر آیت کا ذکر کروں گی۔ یعنی آج میرا ڈسکشن، آج میری گفتگو 3 مراحل میں ہوگی۔ سب سے پہلا مرحلہ قرآن کے حوالے سے ہوگا کہ آج ہم آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس پر خطر ماحول میں، آج کے اس
खौफनाक माहौल में कि जब आज के दौर में हर इंसान दहशत के साए में जी रहा है, हर इंसान खौफ के साए में जी रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में रहने वाला हो, किसी भी कोने में बसने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में बस रहा हो, हर जगह इंसान जो है वो परेशान नजर आ रहा है, वो इंसान खौफजदा नजर आ रहा है। और याद रखिए अजीजों, इंसान जब खौफजदा होता है, छोटी सी मिसाल दे दूं कि जब हम छोटे थे खौफ महसूस होता था तो सबसे करीब तरीन हस्ती हमें कौन नजर आती थी? हमारी माँ नजर आती है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा खौफजदा होता है तो वो चाहता है कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए, ऐसी पनाहगाह मिल जाए कि जहां वो पनाह ले सके, जिससे वो मदद हासिल कर सके। तो अजीजा ने गिरामी, आज इस खौफनाक दौर में हमें भी मदद की ज़रूरत है, हमें भी सहारे की ज़रूरत है, हमें भी एक ऐसे साई की ज़रूरत है कि जो हमें आगोश मादर की तरह अपनी रहमत में समेट ले, अपनी आगोश में समेट ले। और वो ज़ात किसकी ज़ात है अजीज़ो? वो खुदा वंदे ताला की ज़ात है, वो परवरदिगार आलम की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है कि जो हमें मदद कर सकती है, जो इस खौफनाक माहौल में हमें बचा सकती है, क्योंकि ये परवरदिगार है कि जिसकी कुदरत व अख्तियार में ये पूरी कायनात है, और वही यकीनन हमारा हकीकी मददगार है, वही हमारी हकीकी पनाहगाह है। तो जाहिर सी बात है अजीजों, अगर हमें अल्लाह की पनाह में जाना है, अगर हमें अल्लाह से पनाह चाहिए, अगर अल्लाह की मदद चाहिए, तो अब हमें जाहिर सी बात है अल्लाह से राबता कायम करना पड़ेगा। गौर कीजिएगा अजीजों, जरा अपने इज़हान आलिया को थोड़ी देर के लिए ज़रा सा तदब्बर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो ज़ाहिर सी बात है उसे पता कैसे चलेगा कि हम उसकी मदद दरकार है? हमें उससे राब्ता करना पड़ता है, हमें उससे कांटेक्ट करना पड़ता है, हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है जब हम उससे राब्ता कायम करेंगे तभी से तो मालूम होगा ना कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन परवरदिगार तो हर लम्हा अपने बंदों के हाल का जानने वाला है। अब हमें अगर अल्लाह से राबता कायम करना है तो हम अल्लाह से किस तरह रब्त कायम करें, हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें, हम उससे किस तरह से कम्युनिकेट करें, हम उससे किस तरह से अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करें ताकि हम परवरदिगार से करीब तर होते जाएं। वैसे तो खुदा ने कुरान में कहा है कि ऐ बंदो, मैं तुम्हारी शह रग से ज्यादा करीब हूँ, लेकिन बात इतनी है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो अजीजों, अब अगर खुदा से रब्त को कायम करना है, ये रब्त किस तरह कायम होगा, हम कैसे रब्त को कायम करें? तो जाहिर सी बात है किसी से हिदायत लेना पड़ेगी, किसी को पूछना पड़ेगा भाई खुदा से रब्त कैसे किया जाए। तो जाहिर सी बात है दुनिया में एक ही हस्ती नजर आती है कि जो हमें इस बात को वाज़े तौर पर बता सकती है। और ये कौन बता सकता है? वही बता सकता है जो कायनात का हाजत रवा है, जो कायनात का मुश्किल कुशा है, जो कायनात की हाजत रवाई करने वाला, जो कायनात की मुश्किल कुशाई करने वाला, सबका मुश्किल कुशा, जो गालिब अला कुल्ले गालिब है, अली इब्ने अबी तालिब है। सलवात पढ़े। और ये अली जो है और ये अली जो है वो अपने कलाम में अली बता रहे हैं कि अगर तुम खुदा से राब्ता कायम करना चाहते हो तो अली ने क्या कहा? अली ने कहा कि देखो, जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने खुदा से बातें करूं तो कहा मैं मुसल्ले को बिछा लेता हूँ और एक मर्तबा नमाज की नीयत कर लेता हूँ ताकि मैं अपने खुदा से कलाम कर सकूँ, ताकि मैं अपने खुदा का कुर्ब हासिल करूँ। क्योंकि खुदा खुद कहता है कि मेरा बंदा जब सजदा करता है तो वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होता है। तो अली ने बताया अगर रब्त करना है तो मुसल्ले इबादत पर आ जाओ, खुदा से राब्ता कायम हो जाएगा। उसके बाद अली कहते हैं कि और
جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، میں قرآن کھول کر تلاوت کرنے لگتا ہوں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جہاں خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اپنے مومن سے مخاطب ہے۔ تو اللہ علی نے، مولا علی نے ہمیں دو ذرائع بتائے کہ اگر خدا سے ربط کرنا ہے، اگر خدا سے رابطہ کرنا ہے، اگر خدا سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ کہا نماز کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ اور یقین کیجئے عزیزو کہ آج کے اس دور میں، جب کہ آج ہم اسٹریس میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہر فرد جو ہے خوف کی زندگی گزار رہا ہے، آج ہر فرد کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اور انسان اتنا زیادہ خوف زدہ ہے کہ کسی کا آپ دیکھیے گا شوگر لیول شوٹ کر رہا ہے، کسی کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، کسی کو جو ہے اپنے قلب میں انسان کو ہارٹ کی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ صرف انسان کے خوف کی وجہ سے ہے۔ اب انسان کو سکون کس طرح ملے؟ تو قرآن نے اعلان کیا اعلیٰ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو تو تمہیں تمہارے قلب کو سکون میسر ہو جائے گا۔ تو عزیزو بہترین نسخہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور خصوصاً قرآن کے اس سورے کی تلاوت کریں کہ جسے قلب قرآن کہا گیا ہے، جسے سورہ یاسین ہم کہتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین قرآن کا ایک عظیم ترین سورہ ہے کہ جس میں ٹوٹل 83 آیتس موجود ہیں، اور یہ سورہ کیا کہلاتا ہے؟ قلب قرآن کہلاتا ہے، قرآن کا دل کہلاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، یہ قرآن کا دل کہنے کا مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ دل جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ تو یہ سورہ وہ ہے جو ہمیں زندگی کا پیغام دے رہا ہے، یہ سورہ وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹ دیتا ہے، یہ سورہ وہ ہے کہ جس سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے پروٹیکٹیو شیلڈ بن چکا ہے، بن سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری 10 ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، انفارچونیٹلی جس سورے کو قلب قرآن کہا گیا، جس سورے کو زندگی کی علامت سمجھا گیا، ہم نے اسے مردوں والا سورہ قرار دے دیا۔ توجہ کی طالب ہوں کہ آج اگر آپ غور کیجئے گا، سورہ یاسین سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کہاں جا کر آپ پڑھتے ہیں؟ آپ وصال کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کے قبر پر جائیے، آپ وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، جاں کنی کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، یعنی موت، روح جو ہے وہ جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، اکثر اور بیشتر مومن پر اللہ جو ہے، جب اللہ جو ہے جب کبھی مومن کو اللہ جو ہے جب مومن کی سختی کو آسان کرنا چاہتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی مومن ہے، اگر اسے گناہ سرزد ہوا ہے، تو اس منزل پر اللہ تھوڑی سی سختی کرتا ہے، یعنی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ سکرات کا عالم ہوتا ہے۔ کہا اور جب انسان سکرات میں ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا اس کی کیفیت علماؤں نے بیان کی ہے۔ اگر آپ منازل آخرہ پڑھیں یا معاد پڑھیں تو وہاں ملتا کیا ہے؟ کہا جب مومن کی جان جو ہے، جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے، کہا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح خاردار جھاڑیوں پر اگر ایک ریشم کے روپٹے کو لپیٹ دیا، اور جب آپ اس
दुपट्टे को उस झाड़ी से अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दुपट्टा पारा पारा हो जाता है। कहा बिल्कुल इसी तरह जिस्म से जान निकलती है, मुश्किल मरहला होता है, लेकिन अजीज़ों, लेकिन जब कोई अली का चाहने वाला मरता है तो कहा इस तरह से जान निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाती हो। बस अजीज़ा ने गरामी, तो कहा अगर कोई सकरात के आलम में होता है, कहा सूरे यासीन की तलावत करो, उसकी कब्ज़े रूह आसानी से हो जाएगी। गौर कीजिएगा, यहाँ पर अल्लाह बता रहा है कि इस सूरे के फ़वाइद क्या है। कहा अगर कोई कब्र में है, किसी का इंतकाल हो चुका है, कोई दफन हो चुका है, कहा उसकी कब्र पर बैठकर पढ़ोगे तो उसके अजाब में तखफीफ हो जाएगी। यानी ये सूरा वो है कि जिसकी तिलावत करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और उस मैक्सिमम बेनिफिट में ये एक बेनिफिट ये है कि जब आप इस सूरे की तिलावत करते हैं, कहा अल्लाह एक एक आयत पर 10-10 फरिश्ते नाजिल करता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने यासीन कहा, एक छोटी सी आयत है, लेकिन इस सूरे को जैसे ही आपने ये आयत पढ़ा, कहा अल्लाह 10 फरिश्तों को नाजिल करता है और ये फरिश्ते जो हैं आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए इस्तगफार करते हैं। तो कहा इस सूरे का ये फ़ायदा है। लेकिन अज़ीज़ा ने गिरामी, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ज़रा मैं रुक कर आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि दुनिया में जब हम हर चीज़ में बेनिफिट तलाश करते हैं, अगर एक कहीं छोटी सी सेल लगती है, हम जाकर घंटों वहाँ गवा देते हैं। क्यों? ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। हम दुनियावी बेनिफिट के लिए इतनी मस अपने आप को इतनी मुश्किलात में डालते हैं। लेकिन अल्लाह जो वादा कर रहा है कि तुम सूरे यासीन को पढ़ो, हम तुम्हें 10 फायदे अता करेंगे। हाँ अजीजों, इस सूर्य यासीन के लिए मिलता है। अगर भूखा इस नीयत से पड़ेगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाए, अल्लाह इस सूर्य यासीन की बरकत से उसे खाना अता करेगा। कहा अगर कोई इंसान जो है कर्ज की तंगी में मुब्तला है, नियत करके पढ़ा, अल्लाह कुशादगी रिज़्क अता करेगा। तो अजीज़ा ने गिरामी, याद रखिए ये सूरा वो है कि जिसे हम अपनी ज़िंदगी में बतौर प्रोटेक्टिव शील्ड यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप पीपीई पहनती हैं ताकि आप जो है दुनियावी अमराज से बच सके, इसी तरह ये आपका एक पीपीई किट है। ये सोच लीजिए अगर आप इस सूर्य को पढ़ लेती हैं तो आप न सिर्फ दुनियावी आफत और बलियात से महफूज हो जाती हैं, बल्कि गुनाहों से भी महफूज हो जाती हैं। अगर आप इस सूर्य की तलावत करती हैं अजीज़ों, तो आपको फ़ायदा जो है दोहरा मिलता है, दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है, आखिरत में भी फ़ायदा मिलता है। और अजीज़ा ने गिरामी, अगर कोई शख्स बीमार है अगर किसी मर्ज में मुब्तला है, चूँकि आज पैंडमिक का दौर चल रहा है ना, बहुत से लोग मरज का शिकार हैं, बहुत से लोग परेशानियों को शिकार हैं। कहा इस सूर्य की आयत जो है ख़ास आयत है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। इस आयत की तिलावत अगर आप 135 मरतबा करके, और अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए, अगर कोई मरीज़ है उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से सेहत याबी देगा, अल्लाह उसे सेहत देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, मैंने कुरान की अफादियत का भी जिक्र किया और साथ में मैंने सूरह यासीन का भी तज़किरा किया। अब आइए उस आयत की तरफ कि जिसे मैंने सरनामा कलाम बनाया है, जहाँ अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नहयल मौत व नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम। अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना नहनु नहयल मौत, कि यकीनन हम तुम्हें मौत के बाद जिंदगी अता करें। गौर किया अजीजों, अल्लाह ने कहीं पर कुरान में ज्यादातर अगर जिक्र किया है तो मौत के बाद हयात का तस्करा किया।
اللہ ने दुनियावी ज़िंदगी का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है। ये फ़ानी ज़िंदगी है, ये फ़ना हो जाएगी। मैक्सिमम आज के दौर में अगर इंसान जिएगा तो 60 से 70 साल जी सकता है, लेकिन अल्लाह जो है वो अबदी ज़िंदगी की बात करता है कि जो हमें मौत के बाद मिलेगी। तो अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें मौत के बाद हयात देंगे। तो अजीज़ों, अब हमें पता किस तरह चलेगा कि अल्लाह मौत के बाद हयात अता करने वाला है, अल्लाह मौत के बाद भी रूह को ज़िंदा रखने वाला है। एक छोटी सी दलील दे दूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। आपने दुनिया में देखा होगा, अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से गुजर जाता है, तो क्या होता है? कहा उसकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को हटा देते हैं। उसका लिबास है, कहा घर से हटा दिया जाता है। अगर उसके राशन कार्ड में नाम होता है, कहा उस नाम को कटवा दिया जाता है। अगर बैंक में अकाउंट होता है, उसे बंद कर दिया जाता है। अगर प्रॉपर्टी होती है, कहा दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर घर के दरवाजे पर उसके नाम की तख्ती लगी होती है, या तो वो तख्ती हटा दी जाती है या उस तख्ती पर लेट लिख दिया जाता है। कहा ऐसा क्यों किया जाता है? कहा इसलिए कि इसका दुनिया से रब्त टूट गया, इसका कनेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये फानी था, ये मर चुका। तो दुनियावी चीज़ों में अब इसका कोई हक नहीं, अब इसका कोई हिस्सा नहीं। अब ना इसे ये बैंक बैलेंस फ़ायदा देगा, अब ना इसका राशन कार्ड में नाम इसे कोई फ़ायदा देगा, अब ना इसे कोई प्रॉपर्टी फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अज़ीज़ा ने गिरामी, अल्लाह ने मरने के बाद इंसान के नामे अमाल को खुला रख के ये बता दिया कि देखो मौत के बाद भी हमने हयात अता कर रखी है, तुम्हारी रूह जिंदा है, इसीलिए हमने तुम्हारा नामे अमाल खुला रखा है, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी यहाँ नेकियों का इंदराज होता जाए। सलवात तो अजीज़ा ने गिरामी, गौर किया आपने कि अल्लाह जो है नामे अमाल को इसीलिए खुला रखे हुए है कि मरने के बाद भी नेकियों का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि इंसान के पास नेकियों की भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है कि जो इंसान खुद अमल करता है। मिसाल के तौर पर जब तक हम जिंदा हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें इसका सवाब मिलता रहेगा, हमारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। हमने रोज़ा रखा, हमें इसका अजर सवाब मिलेगा। अगर हमने हज किया, हमारे नामे अमाल में इसका सवाब दर्ज किया जाएगा। अगर हमने ज़ियारत करबला की, हमारा नामे अमाल में, हमारे नामे अमाल में इसके सवाब का इंदराज होगा। ये जो है लिखा जाएगा, लोग लिखते, फरिश्ते लिखते जाएंगे, छोटी छोटी जितनी भी नेकियां आप करती जाएंगी। आप अगर किसी को पानी पिला रही हैं, वो नेकी भी आपकी दर्ज होगी। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो नेकी भी दर्ज हो जाएगी। गर्ज अजीज़ों, जब तक जिंदा हैं आपने खुद नेकी की, अल्लाह ने उसे रकम कर दिया, उसे अल्लाह ने लिख दिया। लेकिन अब जब इंसान की हयात मुनक़ता हो गई, अब जब सांस की डोर टूट गई, अब इंसान मर गया, दुनिया में ये फना हो गया, इंसान जो है अब दुनिया से जाने लगा। अब उसके बाद वो नेकियां जो उसने खुद की थी, वो नेकियां तो खत्म हो गई, उन नेकियों को स्टॉप कर दिया गया। अब वो चूंकि नेकी नहीं कर सकता, अब वो अमल नहीं कर सकता है, तो अब अल्लाह, अब उसके नामे अमाल में अब नेकियां कैसे लिखी जाएंगी? तो अल्लाह ने बताया कि देखो, अगर तुम मर जाते हो, अगर तुमने औलाद छोड़ी, अगर तुमने नेक और सौले औलाद छोड़ी है, तो ये औलाद जो है, इस औलाद के जरिए तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। अब जब जब औलाद नेक अमल करती रहेगी, औलाद तुम्हारे लिए नमाजें पढ़वाएगी, कहा तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। औलाद मजलिसें बपा करेगी तो तुम्हारे नामे आमाल में इसका सवाब मिलता जाएगा। हाँ सीसा ने गरामी, छोटी सी दुनियावी मिसाल दे दूं, अगर आप जब तक किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाती हैं तो आप करती क्या है? कहा आप प्रीमियम
प्रीमियम भरती रहती हैं। आपने जब प्रीमियम मुकम्मल कर दिया, मैच्योरिटी हो गई, तो अब आपको प्रीमियम नहीं भरना है, अब आपको सिर्फ रिटर्न मिलता रहेगा। कहा इसी तरह जब तक आप जिंदा थी, आपने अपने बच्चों की तरबियत कर दी, आपने अपने बच्चों को नेक बना दिया, आपने उन्हें सौले बना दिया। अब जब मैच्योरिटी हो गई, आपका दुनिया से लिंक ख़त्म हो गया, अब ये औलाद जो है ये आपके लिए नेकी का ज़रिया बन जाएगी, ये सदका जारिया बन जाएगी। ये जो अमल करती जाएगी, अल्लाह उसका सवाब भी आपके नामे आमाल में लिखता जाएगा। औलाद नेकियां करेगी, मरहूम के नामे आमाल में उसका सवाब का इंदराज किया जाएगा। तो अजीज़ा ने गिरामी, अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप भी उन्हें छोटे छोटे तोहफे भेजें, आप भी उन्हें छोटे हदिये भेजें। और इन हदियों को भेजने के लिए आपको किसी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, अपने वालिदैन को इसाल कर दीजिए, अल्लाह उसका सवाब उन्हें अता करेगा। सिर्फ यही नहीं अजीज़ों, आप जितने भी मुस्तहब अमाल करिए, नमाज हदिया वालिदैन पढ़िए। आज चूँकि शब जुमा है, इसलिए आप चाहें तो अपने वालिदैन को नमाज वालिदैन हदिया करिए, उसका अजर सवाब उन्हें पहुँचाइए। अगर आप ज़ियारत आशूरा पढ़ रही हैं, जब नियत कीजिए, अपने वालिदैन की तरफ से पढ़ने की नियत कीजिए। आप यहाँ ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगी और उसका सवाब जो है आपके वालिदैन को पहुँचता रहेगा। आप अगर कोई भी मुस्तहब इबादत कर रही हैं और ख़ुसूसन अगर सदका देती, याद रखिए अजीजों, सदके के मोहताज सिर्फ जिंदा नहीं होते हैं, ये मुर्दे भी जो हैं वो सदके के मोहताज होते हैं। उनके लिए भी सदका किया करें, उनके नाम से भी सदका दिया करें। और सिर्फ ऐसा नहीं कि माल और दौलत के ज़रिए। एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूं और फिर रब्ते मसाइब की तरफ आ जाऊं कि एक मर्तबा एक बादशाह का इंतकाल, वो बादशाह मर गया और कुछ दिनों के बाद जब अपने बेटे के ख्वाब में आया, अब बेटे ने जैसे ही अपने बाप को देखा, चूंकि बादशाह था, तो अपने बाप को सलाम करता है, अस्सलाम वालेका या अमीर। ए अमीर, बाबा को क्या कहकर सलाम किया? अमीर कहकर सलाम किया। तो एक मर्तबा उसके बाप ने कहा, बेटा अब मुझे अमीर कहकर सलाम न कर, मुझे असीर कहकर सलाम कर, क्योंकि मैं यहाँ कैदो बंद में हूँ, मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ। और उसके बाद उसका बाप कहता है कि ए बेटे देखो, अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ज़रूर किया करना कि जब भी अपने दस्तरखान का बचा हुआ खाना किसी जानवर के आगे डालो, तो उसका अजर व सवाब हमारे लिए हदिया कर दिया करो, दुआ किया करो, नियत कर दिया करो कि इसका सवाब मेरे मरहूम वालिदैन को पहुँचे। कहा हमें उसका अजर व सवाब भी मिलता है। तो अजीज़ा ने गिरामी, कोशिश ये किया कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन को सवाब पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वही वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आप पर कुर्बान कर दी। ये आपके वही वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जवानी आपकी परवरिश में लगा दी। ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने हर लम्हा आपकी खबरगिरी की। ये वही वालिदैन होते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये बाप होता है कि जो सारी ज़िंदगी मेहनत व मुशक्क़त करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाता है। ये बाप होता है जो साये शजरदार बन जाता है। ये बाप होता है जो आपकी खबरगिरी करता रहता है। एक बाप के इसाल की मजलिस है। अज़ीज़ों, दुआ करूँगी कि अल्लाह हर बच्चे के सर पर उसके बाप के साये को सलामत रखे। बड़ी अजीम नेमत होती है अज़ीज़ों, जिसका इदराक जब बाप चला जाता है ना, तब हमें एहसास होता है। इसीलिए तो रज़ा सिरसवी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि दिन ढले करके मजदूरी, जब रज़ा आता है बाप। हाँ अज़ीज़ों, अरे दिन ढलने के बाद जब बाप मजदूरी करके आता है, अपने हंसते हुए बच्चों को देख कर वो अपनी सारी तकलीफों को भुला देता है, अपने सारी मुसीबतों को भुला देता है, अपनी सारी थकन को भुला
देता है। बस अजीज़ों चंद जुमले मसाइब के हवाले से अरे हुसैन के रुखसत आखिर का जिक्र करना चाहूँगी कि जब हुसैन खैमे से रुखसत हो रहे थे। हाँ जीज़ान ग्रामी, बस चंद जुमले मसाइब के हवाले से कि असर आशूर जब हुसैन सारे लाशें उठा चुके, अकबर जैसे कड़ियल जवान का लाशा हुसैन ने उठाया, असगर जैसे शशमाही की लाश को अरे खाक के सिपुर्द किया, कभी अब्बास के कटे हुए हाथों को उठाया। जब सारे इम्तिहान हुसैन दे चुके, एक मर्तबा अरे दर खैमा पर आए, आवाज दिए ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, ए कुलसूम मेरा आखिरी सलाम, ए अम्मा की कनीज़ फिज़ा मेरा आखिरी सलाम। आज़ीज़ो असरे आशूर अरे जैसे बीवियों ने इन आवाज को सुना, बीवियों में मातम बका बपा हुआ, वो बीवियों ने रोना शुरू किया। अरे यही बीवियां कभी गिर के उठती थी, कभी उठ उठ के गिरती थी। ज़ैनब दरे खैमा पर आई, क्या देखा, अरे हुसैन दरे खैमा पर खड़े हैं। हुसैन खैमे में आए, कहा ज़ैनब मेरा पुराना लिबास ले आओ, ये ज़ैनब मेरा संदूक ले आओ। अरे ज़ैनब संदूक ले आई। हुसैन ने संदूक खोला, एक फटा हुआ लिबास निकाला, उसे जेबतन किया। हाय जब इतना फटा हुआ लिबास हुसैन ने जेबतन किया और जेबतन करने के बाद उसे जगह जगह से चाक कर दिया। असगर की माँ रबाब आगे बढ़ी, कहा मौला आप तो जन्नत के लिबास पहना करते थे। अरे हुसैन ने कहा रबाब दुआ करो के जालिम ये फटा लिबास भी मेरे जिस्म पर रहने दे। हाँ जीसाने गरामी, दिल खोल कर गिरिया कीजिएगा, अगर आंखों में आंसू आ जाएं, रोती हुई आंखों के साथ अपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करिएगा। जिनके वालिद हयात हैं दुआ कीजिए कि अल्लाह उनका साया कायम रखे, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करिएगा कि परवरदिगार उनकी बरज़ख की मंजिल को आसान कर दे। बस अजीज़ो, अब हुसैन ने कहा, ए बीबियो मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं हर एक से जुदा हूँ, तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाना, मैं एक मर्तबा में गुजर जाऊंगा। हाय बीबियाँ कतार में खड़ी हुई, हुसैन गुजरने लगे, एक एक बीबी को देखा, एक एक बीबी तड़प रही थी, एक एक बीबी गिरिया कर रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख लिखती है कि चार चीज़ें असरे आशूर ऐसी थीं जो हुसैन की काम करना बंद कर चुकी थी। हुसैन ने क्यों कहा ए बीबियों कतार में खड़े हो जाओ, क्योंकि हुसैन हुसैन का जिगर जो है प्यास की इतनी शिद्दत थी कि हुसैन के जिगर ने काम करना बंद कर दिया। एक रावी लिखता है कि जब हुसैन घोड़े से गिर चुके और जब मैं हुसैन के करीब आया, अरे एक जुमला सुन रहा था, हुसैन कह रहे थे परवरदिगारा अरे मेरा जिगर प्यास की वजह से चाक हो चुका। अजीज़ो हुसैन का जिगर काम करना बंद कर चुका था। कहा दूसरी कौन सी चीज़, कहा हुसैन की
आंखें थीं जो गिरिए, जो प्यास की शिद्दत की वजह से हुसैन को कुछ दिखाई न देता था। सारे मनाजिर धुंधले नजर आ रहे थे। इसीलिए तो जब अकबर ने आवाज दी थी, हुसैन ने क्या कहा था, "ए मेरे लाल, मेरे आंखों का नूर चला गया, ए अकबर आवाज दो।" अरे हुसैन, तुम्हारे आवाज के सहारे तुम्हारे लाशे तक आएगा। हाँ अजीजो, हुसैन की आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कहा तीसरी चीज जो हुसैन की काम नहीं कर रही थी, कहा हुसैन के लब थे जो शिद्दत आतश से ऐसा चिपक गए थे कि खुल नहीं पाते थे। और कहा चौथी चीज हुसैन की जुबान थी, अरे जो इतनी खुश्क हो चुकी थी, इतने कांटे पड़ चुके थे कि जब अकबर ने वक्त आखिर सवाल आप किया था ना, हुसैन ने क्या कहा था अकबर, अरे लाओ अपनी जबान मेरे जबान में दे दो। अकबर ने जबान हुसैन की जबान में दी थी, ये कहकर खींच लिया था, बाबा आपकी जुबान में मुझसे ज्यादा कांटे हैं। रवायत कहती है हुसैन की जुबान इतनी सूखी थी कि जब कुछ कहना चाहते थे, अरे जुबान से भी लहू की धारें निकल रही थी। सिर्फ हुसैन का जिस्म नहीं जख्मी था। मेरा चौथा इमाम कहता है, अरे मेरा बाबा जब आखिरी रुखसत के लिए आया था, अजीजो बेटे मौजूद होंगे ना, बाप का गम उठाया है। मैं कहूँगी खुदा आपको सब्र अता करे, लेकिन आपने अपने बाबा को जख्मी हालत में तो न देखा होगा ना, मगर हाय, अरे मेरा चौथा इमाम कहता है कि जब मेरी पुब्बी ने मुझे बेदार किया था, मैंने क्या देखा, मेरे बाबा के जिस्म पर इतने जख्म लगे थे कि एक जरा जगह नजर न आती थी। अरे हुसैन सबसे रुखसत हो चुके अजीजों, मगर सबसे सख्त तरीन मरहला कौन सा था कि जब हुसैन खैमे से बाहर आए, हाय जब घोड़े के करीब गए, एक मर्तबा घोड़े को देखा, अपने दाएं नजर डाली, बाएं नजर डाली, बेअख्तियार अब्बास याद आए, बेअख्तियार अकबर याद आए, वो लम्हा याद आया कि जब हुसैन घोड़े पर सवार होना चाहते थे, एक तरफ से भाई बाजुओं को थामता था, एक तरफ जवान बेटा थामता था। अरे हुसैन घोड़े पर सवार होते थे। आज जब हुसैन ने सवार होना चाहा, आवाज दी मेरे शेरों कहा हो, आज हुसैन को सवार कराने वाला कोई नहीं। बस अजीजो हुसैन सवार हुए। अब हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़ना चाहा, घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ अजीजो, हुसैन ने कहा, इस पे बावफा मुझे मालूम है ये तेरी आखिरी सवारी है, अरे अब तुझे मुझे वापस भी नहीं लाना है। घोड़े ने बेअख्तियार अपना सर झुका दिया। अब जब हुसैन ने देखा तो अजीब मंजर था। क्या देखा, अरे लाडली सकीना, आगोश की पाली सकीना, अरे घोड़े के सुमों से लिपटी आवाज दे रही थी, हे मेरे बाबा के घोड़े, अरे मेरे बाबा को न ले जाना। बस अजीजो, इस मंजर का देखना था। हुसैन घोड़े से उतरे, करीब आए, कहा, मेरी लाल रुखसत हो चुकी थी सकीना, ए सकीना घर से बाहर क्यों आ गई? अजीजो बेटियां मौजूद है ना, बेटियों को दिलासा देना चाहूंगी, बाप खोया है ना अजीजो, यतीमी का दाग बहुत बुरा होता है, खुदा ना करे कि कोई बच्ची
سایہ اٹھتا ہے، کوئی شفقت کرنے والا نہیں رہ جاتا۔ بس لیکن بیٹیوں کو صبر کی تلقین کروں گی کہ آج بابا کا سایہ اٹھ چکا، مگر کسی نے آپ پر ظلم نہیں ڈھایا، کسی نے تماچے نہیں ڈھائے، کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مگر ہائے باد حسین، سکینہ کو کبھی تماچے مارے گئے، ارے سکینہ پر ظلم ڈھائے گیا، کبھی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا سکینہ اے میری لال، رخصت کر چکا تھا سکینہ، اے سکینہ خیمے سے باہر کیوں آ؟ کہا بابا دل نہیں مانتا، اے بابا جا تو رہے ہو، آخری مرتبہ اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ ارے حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلایا، بالوں پر ہاتھ پھیرا، کہا سکینہ سنو، اب آج کے بعد میرے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا، ہے سکینہ، آج کے بعد خاک پر سو جانا، ماں کے پاس سو جانا۔ ارے سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بابا میں تو آپ کی چہیتی ہوں بابا، آپ کے سینے پر سوتی ہوں، اے بابا اماں کے پاس تو اصغر سوتا ہے۔ ارے حسین نے کہا سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی، اے سکینہ اصغر میرے پاس سوئے گا، ارے تم اماں کے پاس سو جانا۔ اے سکینہ اگر کہیں جگہ نہ ملے خاک پر سو جانا، اے میری لال، جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ خاک پر بھی سو جاتے ہیں۔ ارے سکینہ نے کہا بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکی ایک مٹھی کربلا کی ریت اٹھائی، حسین نے سکینہ کے سر پر ڈال کر کہا اے میری لال، ارے جب گوشوارے چھن جائے، ارے جب وہاں گال پر تماچے لگنے لگے، اے سکینہ سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔